Okay, so good morning once again, students. It's time for physics, as you all know, and we were studying this chapter motion. We had already discussed a number of things about the features of motion or the quality of motion, what is motion, different types of motion, and etc. etc. So, just for a recap, like when an object changes its position with respect to its surrounding in time, it's motion. When an object moves, it travels on a certain path, and the length of the path covered by a moving body is distance. Now it covers that distance in some time, that is taken as time. And the third aspect, when we talk about it, is how much time has the object, has the moving body covered how much distance. That is the rate of the covering of distance. We call it speed. Distance covered per unit time. The next thing we studied was displacement. Displacement, as we all know, is what? Nothing but distance, but with distance now we add one more feature to it, and which is the direction of motion. Distance किस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, कितना कवर हो रहा है, वो मैग्नीट्यूड है उसका, जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब ये किस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट। So I guess till here we all had studied, we had calculated the speed, we had solved a few numerical problems. वो जो फार्मर मूव कर रहा था स्क्वायर फीट की बाउंड्री पे, उसका डिस्कशन हो गया था, और कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे थे। Now today we are going to study about, first of all let me give you all an introduction to scalar and vector quantities today. So just a second, I'll move you all a bit, there will be a moment of disturbance. Yeah. So it's clear. Now today, 19th April, and the year that we are facing has been not been very good since the start, but still we have to live. Motion, and the topics that we have studied are, well, I have already given you a recap, so it doesn't matter. Now, till now we had discussed, the last thing that we had discussed was displacement. So now the next thing that we are going to study is about this word, velocity. So, displacement, as we all know, is what? Distance along with direction. Similarly, velocity is what? The speed of the moving body along with the direction of motion, along with the direction of motion. Speed, we all know the definition, the rate at which a moving body covers the distance. Speed is equal to distance upon time. Now velocity is what? When we talk of speed of a moving body, now we add direction to it and we call it velocity. So I hope इतना आप सबके समझ में आ रहा होगा। बहुत बड़ी या डिफिकल्ट सी बात अभी मैंने नहीं करी है, और जैसा कि आपको याद था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला था, और जैसे कि बुक में हम लोगों ने पढ़ा था इन अ डिफरेंट फॉर्म, वहां पे स्पीड को एस से ना डिनोट करके इन्होंने डिनोट किया तो वी से, डिस्टेंस को डी से ना डिनोट करके इन्होंने डिनोट करा था एस से। So I hope you remember the notations, इसमें कंफ्यूज मत होना।
एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये छोटी क्लासेस से भी हम सब लोगों ने पढ़ रखा है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट नाउ, वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। अब इसका फॉर्मूला क्या बाद में डिस्कस करेंगे, पहले दो चीजें डिस्कस कर ले हम, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इनके बारे में थोड़ी सी बात है। तो स्केलर क्या है? जब भी किसी क्वांटिटी का मेजर हम करते हैं तो हमें उसका क्या पता लगता है? मैग्नीट्यूड। जैसे डिस्टेंस कवर हो रहा है, हमने कहा ठीक है, उसकी पाथ जो है मूविंग बॉडी का, उसकी लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं, तो जितनी लेंथ आती है उसकी वही क्या हो जाता है? डिस्टेंस हो जाता है। अब उसमें सिर्फ डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मतलब कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं जिसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वी कॉल देम स्केलर क्वांटिटीज। एंड जहां पे डायरेक्शन भी ऐड हो जाए, मैग्नीट्यूड तो रहेगी ही, एंड डायरेक्शन तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कह देते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, वी कॉल देम वेक्टर क्वांटिटीज। आई होप इतना आपके समझ में आ गया हो कि वेलोसिटी क्या है, नथिंग बट स्पीड नाउ इंक्लूडिंग डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड क्या है? स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बट डिस्टेंस की जब बात होगी, जब डायरेक्शन की नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, तो ऐसे में हम डिस्टेंस को क्या कहेंगे? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट अगेन इज व्हाट आई एम रिपीटिंग इट, वेक्टर क्वांटिटी। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। Again, I am disturbing you all a bit, and the voice can be irritating. Please remove your headphones. Yes, it's perfect. So, फिर से यहाँ पे बात करेंगे। मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ, आप लोग अपने बुक्स में देखोगे। क्या रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि और हम उसकी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, जैसा कि हमने डिस्टेंस के केस में जब डायरेक्शन स्पेसिफाई करा तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, या स्पीड में अगर हम डायरेक्शन जोड़ देंगे, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। ये काइंड ऑफ उसकी डेफिनेशन होगी। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल, जैसे कि स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है या वेरिएबल की। सपोज वी आर मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो ये क्या होगी? यूनिफॉर्म स्पीड होगी। बट हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, स्पीड बढ़ भी रही है, जब खाली जगह मिल रही है, जब फिर से जाम मिल जा रहा है तो स्पीड धीमी हो रही है, वो क्या हो जाएगी? वेरिएबल या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जैसा कि हमने उसका एक टाइप पढ़ रखा है। इट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड। अब स्पीड यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कब होती है? जब खाली उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। बट वेलोसिटी के केस में ऐसा नहीं है। वेलोसिटी बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, बिना डायरेक्शन को कंसीडर करें हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो वेलोसिटी के केस में क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट सपोज मूव कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, बट अब वो टर्न ले रहा, इट टर्न एंड स्टार्टेड मूविंग एट अ डिफरेंट डायरेक्शन
कंपेयर टू इट्स प्रीवियस डायरेक्शन। तो अब यहाँ हम वेलोसिटी में चेंज कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन का चेंज भी ये इंडिकेट करेगा कि वेलोसिटी हैज चेंज इवन दो द मैग्नीट्यूड कैन रिमेन द सेम, कि वो 40 पे चल रहा था या 60 पे चल रहा था तो 60 पे ही चल रहा है। बट अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुई तो हम उसे चेंज इन वेलोसिटी के रूप में कंसिडर करेंगे। तो यही है, इन्होंने बहुत ही छोटी सी बात बताई कि इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, या फिर दोनों बदलेंगे तो वेलोसिटी चेंज हो ही गई। When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. जैसे इन्होंने क्या था कि it is calculated in the same way as we calculate average speed, कोई बड़ा चेंज नहीं है। तो होगा क्या, इसमें कंसीडर क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और दोनों को फिर 2 से डिवाइड कर देंगे या उनका मीन ले लेंगे। In case the velocity of an object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time। ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन नंबर 8.2 आप देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया है, मैथमेटिकली VAV जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है वो एब्रीविएशन है सिंपली एवरेज वेलोसिटी का। इन्होंने क्या किया था, U प्लस V/2, जहां पे U क्या है, U इज द इनिशियल वेलोसिटी, V क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब जो उसने चेंज करके अब जिस वेलोसिटी पे वो चल रहा है वो, और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी का पता लग जाएगा। दिस वाज वन कॉन्सेप्ट। अब जैसे ये क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है, रेट ऑफ मोशन, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ मोशन नाउ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है सबकी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडर व्हाट कंडीशंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। किस कंडीशन में, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रही है तब, क्योंकि बात मैग्नीट्यूड की होगी यहाँ पे, तो अगर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है तो कह सकते हैं हम कि दोनों केसेस में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम रहेगी। व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर? डिस्टेंस। व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन रहेगा या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, मतलब कि कांस्टेंट डायरेक्शन में भी मोशन होगा। स्ट्रेट लाइन की बात कर दिया इन्होंने तो यूनिफॉर्म मोशन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। अब नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स। व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन? द सिग्नल ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज दिस। तो अब यहाँ पे आपको स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, यूज द फार्मूला। वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन एज फार एज आई कैन रिमेंबर। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, नया टॉपिक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किस रेट पे चेंज हो रही है। अभी तक हम बात कर रहे थे कि डिस्टेंस, सबसे पहले हमने क्या बात की कि डिस्टेंस किस रेट पे कवर हो रहा है, हमने कहा स्पीड क्या है, किस रेट पे कवर हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है, इन्होंने कहा वेलोसिटी। अब इन्होंने कहा कि जो वेलोसिटी तेज धीमी हो रही है ये किस रेट पे हो रही है। नाउ अ न्यू कॉन्सेप्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, तो इसको देखते हैं। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, मतलब कि चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म मोशन की बात हो रही है, तो डायरेक्शन भी सेम है और स्पीड भी सेम, तो कंबाइन दोनों को वेलोसिटी कहते हैं। इन्होंने कहा कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर एनी टाइम इंटरवल इज 0, मतलब कि अगर हमने उसे एक इंस्टेंट पे मेजर करा, फिर सपोज उस इंस्टेंट से 10 मिनट बाद मेजर करा, अगर सेम है डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, तो हम कहेंगे क्या है, चेंज 0। However, in non-uniform motion, मतलब कि जब चेंज हो रहा है either direction or the speed, non-uniform motion velocity varies with time. It has different values at different instants and at different points of the path. Thus, the change in velocity of the object during any time interval यहाँ पे is not 0. अब इस change of velocity को क्या हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। And how are we going to do that? To answer such a question, we have to introduce another physical quantity called acceleration, which is
अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के साथ लोग अंडरलाइन कर लेंगे, यहाँ पे है अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एक्सेलरेशन। और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, द फॉर्मूला फॉर इट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो ये इतनी बात आई होप सबके समझ में आ रही है। अब इसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू u, मतलब कि हमने मान लिया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t, तो एक्सेलरेशन a क्या होगा, a वुड बी इक्वल टू v minus u upon t. This kind of motion is known as accelerated motion. The acceleration is taken to be positive if the direction of velocity, if it is in the direction of velocity, मतलब कि स्पीड जो एक्सेलरेशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो हम उसे पॉजिटिव ले लेते हैं। और नेगेटिव कब लेंगे, when it is opposite to the direction of velocity. The SI unit of acceleration is meter per second square. Another very important point, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से पूछ लिया जाता है। तो अब एक्सेलरेशन पे थोड़ा सा और डीप में डिस्कशन करते हैं। अगेन आई हैव टू शिफ्ट यू ऑन, जस्ट अ सेकंड। Yeah, the board's visible. Again, pay attention to the spellings very, very carefully. Acceleration. Even I got confused. Just a second, let me check. Yeah, it's acceleration. क्या है? Rate of change of velocity. फॉर्मूला क्या है, रिप्रेजेंटेड यूजुअली बाय ए। ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, जिसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द बुक हमने क्या लिखा था, फाइनल वेलोसिटी मतलब कि v माइनस u अपॉन t, द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन, जहां पे v इज द फाइनल वेलोसिटी, u is the initial velocity, t again means time taken. अब एक बहुत बेसिक बात हम लोग जानते हैं, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर स्पीड 0 है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट है, उल्टी स्पीड जैसा कुछ होता ही नहीं। सेम इज द केस विद डिस्टेंस, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम या तो 0 है, माइनस टाइम जैसे, मतलब गोइंग बैक इनटू द पास्ट, जैसे टाइम मशीन्स का कॉन्सेप्ट मूवीज में दिखाते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। बट जब वेक्टर क्वांटिटीज की बात आती है तो दे कैन बी नेगेटिव, वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। कब, जैसे सपोज आप साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं एट सम वेलोसिटी से x मीटर्स पर सेकेंड। अब नॉर्थ में जहां तक आप गए, जहां आपका काम था, फिर वहां से आप वापस आने लगे, तो अब जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके रिस्पेक्ट में आपका डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट है, तो उसके रिलेशन में, रिलेटिव टू दैट, अब आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव ना। सेम इज द केस विद एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में नेगेटिव और पॉजिटिव जब ये बता रहे थे, अब इसको समझने की जरूरत है। स्पीड जब घटेगी
when the rate of motion will decrease. Suppose initial थी x, फाइनल थी y. अगर if x is less than y तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स अपॉन टी. ये बात है. बट अगर x y से बड़ा, if x is greater than y, उस केस में क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. बट अगर यहां पे x बड़ा है तो क्या होगा? y माइनस एक्स जो भी आएगा वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है. नेगेटिव जो भी आएगा नेगेटिव में आएगा. भाई छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करते तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा. कि जैसे 5 में से हम 10 माइनस करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बट हम उसे -5 लिखते हैं. करते क्या है? सब्ट्रैक्शन हम लार्ज में से स्मॉल नहीं करेंगे, बट अब एक नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो वही जो रिलेटिव वेलोसिटी की जैसे मैंने बात की थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो रिलेटिव एक्सेलरेशन उस कॉन्टेक्स्ट में क्या कह देंगे हम यहाँ पे कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब स्पीड जब घटेगी तो क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा. एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम just to separate it from this, I'm drawing a line. Negative acceleration को हम कहते हैं retardation. और दूसरा कब रिटार्डेशन होगा? अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन इनिशियल डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट हो जाए तो क्या होगा? इस केस में भी हम उसे कंसीडर रिटार्डेशन ही करेंगे. जैसे वेलोसिटी को हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, वैसे ही एक्सेलरेशन को भी हम नेगेटिव करेंगे. कब? जब डायरेक्शन ऑफ मोशन या तो ऑपोजिट हो या फिर उसका मैग्नीट्यूड घट रहा हो, तब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा या फिर रिटार्डेशन होगा. आई होप इतनी बात आप सबको क्लियर है. नाउ we'll discuss something in the chapter. Let me shift you on once again, but इस बार I have found a way to minimize the noise. Yep. So this is it. ये बात हो गई. फॉर्मूला देख लिया हमने. ये इतनी बातें हम लोगों ने कर ली. नेक्स्ट क्या था? एग्जाम्पल था नहीं, यहाँ पे था. If an object travels in a straight line and its velocity increases or decreases by equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. The motion of a freely falling body is an example of uniformly accelerated motion. मतलब कि फ्री फॉल क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम बिना कोई फोर्स लगाए फ्रीली फॉल करने के लिए अलाउ करें. आई एम सॉरी, मेरी कैचिंग अच्छी नहीं है. तो ये क्या था? इट्स एन एग्जांपल ऑफ फ्री फॉल अगेन. ये इसकी बात कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की वेलोसिटी है वो एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ती जाती है. तो इसी को क्या कह रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया फ्रीली फॉलिंग बॉडी का, जो एक एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का. कौन सी? फ्रीली फॉलिंग बॉडी. ऑन द अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रैवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इट इज if its velocity changes at a non-uniform rate. For example, if a car traveling along a straight road increases its speed by unequal amounts in equal intervals of time. जैसे suppose अगर हर 100 मीटर पे उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से 100 सेकंड पे उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ रही है, तो हमें पता है 200 सेकंड के बाद वो 20 बढ़ चुकी होगी, 300 सेकंड के बाद 30 बढ़ चुकी होगी. बट अगर पहले 100 सेकंड के बाद 10 बढ़ी, फिर दूसरे 100 सेकंड के बाद डायरेक्ट 30 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई, तीसरे सेकंड पे घट गई, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म रेट पे उसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. ये इन्होंने यहाँ पे इतना बताया है. अब नाउ लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल. एग्जांपल 8.4. स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू
attain a velocity of 6 meters per second in 30 seconds. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meters per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. तो अब सबसे पहले हमें पता था कि राहुल लगातार चल तो रहा था, रुका हुआ था. उसने जब स्टार्ट करा अपना मोशन तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0. तो फर्स्ट केस में इन्होंने कहा इनिशियल वेलोसिटी इज 0. अब इन्होंने क्या कहा कि 30 सेकंड के बाद उसने 6 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी अचीव कर ली. तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता था क्या था? 6 मीटर्स पर सेकंड. टाइम क्या था? 30 सेकंड. तो फॉर्मूला हमें पता है, हमने सिंपली इसमें पुट करा तो क्या आया? 6 माइनस 0.30 विच इज 0.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. क्या हो गया? एक्सेलरेशन. बट अब ये क्या बोल रहे हैं कि ब्रेक लगाता है, माइट भी कोई ऑब्स्टिकल आया, स्पीड ब्रेकर कोई सामने आ गया, ठीक है. तो देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर्स पर सेकंड इन द नेक्स्ट 5 सेकंड्स. तो अब इन्होंने क्या कहा? सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जो पिछली थी 6 पे चल रहा था, फाइनल क्या हो गई? ब्रेक लगाने के बाद 4 मीटर पर सेकंड. कितने टाइम में? 5 सेकंड में. तो फॉर्मूले में फिर रखा, देखो यहाँ पे माइनस आ गया, द माइनस दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो यहाँ क्या स्पीड घट रही है ना, रिटार्डेशन हो रहा है, हेंस द माइनस साइन. अगर आप कैलकुलेट करके कहीं पे आपको माइनस में वैल्यू मिलती है तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ है. द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन द फर्स्ट केस इज दिस एंड इन द सेकंड केस इट इज minus 0.4 meter per second square. I hope you all have understood it. So I'll stop the class here for today. आगे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. Thank you.